بول میں خوش آمدید، میں ہوں طارق مسعود علیانی اور میں ہوں گوہر اشرت۔ ہیڈ لائنز اپنی جانی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور بھرپور سفارتی سرگرمیوں کی بات کریں گے۔ اسلام آباد بھرپور سفارتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ہے۔ خطے کی صورتحال پر 4 افریقی اجلاس آج ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دعوت پر آج اہم سفارتی بیٹھک ہوگی، جبکہ پاکستان، سعودی عرب، مصر اور ترکی کے وزراء خارجہ اہم ترین مشاورت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اجلاس کی صدارت کریں گے۔ خطے کی صورتحال، خاص طور پر امریکہ ایران کشیدگی سے متعلق امور زیر غور آئیں گے۔ مصری وزیر خارجہ بدر عبدالغاتی اور ترک وزیر خارجہ حقان فیدان اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ اجلاس میں سعودی وزیر خارجہ بھی شرکت کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق اجلاس کے ساتھ تینوں ممالک کے پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ مذاکرات بھی ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ کو ظہرانہ بھی دیں گے۔ سعودی عرب، ترکیہ، مصر کے وزرائے خارجہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ ملک سعید اوان اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ تمام تر صورتحال پہ اہم سفارتی سرگرمیاں تو عروج پہ ہیں ہی، کیا کچھ ہونے والا ہے ان سے جانتے ہیں۔ ملک سعید اوان آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اسلام آباد پوری دنیا کا مرکز بن چکا ہے اور تمام دنیا کی نگاہیں اسلام آباد پہ ہیں، کیونکہ تمام سفارتی سرگرمیاں اسلام آباد سے ہو رہی ہیں۔ آج 4 افریقی وزراء خارجہ کانفرنس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے۔ اجلاس کی صدارت نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کریں گے اور اس جو وزیر خارجہ اجلاس ہے اور اس میں شرکت کے لیے 2 وزراء خارجہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، جن میں سے مصر کے وزیر خارجہ اور ترکی کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں۔ اور آج صبح مصر کے وزیر خارجہ نے دفتر خارجہ کا دورہ کیا، جہاں پہ وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ان کا استقبال کیا اور 2 طرفہ تعلقات پر بات چیت بھی کی گئی۔ اسی طرح ترکی کے وزیر خارجہ نے بھی آج صبح جو ہے دفتر خارجہ کا دورہ کیا اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ان کا جو ہے وہاں پہ استقبال کیا۔ 2 طرفہ تعلقات پر وہاں پہ بھی بات کی گئی۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ اسلام آباد میں پہنچیں گے، جس کے بعد باضابطہ طور پر آج جو ہے وہ 4 افریقی وزراء خارجہ جو اجلاس ہے وہ منعقد ہوگا، جس میں ایران اور خطے کی جو کشیدہ صورتحال ہے اس پر بات چیت کی جائے گی۔ یہ مشاورت کا عمل پہلے سے جاری ہے اور اس میں آج مزید جو ہے وہ پیش رفت ہونے کا امکان ہے اور مزید بات چیت ہوگی۔ اس کے بعد جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہے ان کی جانب سے جو ہے وزیر خارجہ کے اعزاز میں آج دورانہ بھی دیا جائے گا، جبکہ تینوں وزراء خارجہ کی جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقاتیں اور دیگر سے بھی ملاقاتیں متوقع ہیں۔ اور اس ٹائم اگر ہم بات کریں تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ سفارتی طور پر پاکستان کو دیکھ رہی ہے اور پاکستان اس ٹائم سفارتی سرگرمیوں کا جو ہے وہ ہب بن چکا ہے۔ ایران کے حوالے سے جو ہے وہ مذاکرات مشاورت جاری ہے۔ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے اور اس حوالے سے دنیا نے کافی مرتبہ پاکستان کو سراہا بھی ہے اور آج باضابطہ طور پر 4 اسلامی ممالک جو انتہائی اہم اسلامی ممالک ہیں ان کے وزراء خارجہ کی کانفرنس آج اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے۔ جی سفارتی سطح پر یقینی طور پہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ملک سعید اوان ہمیں اپڈیٹ کریں لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال پہ۔ اسلام آباد پھر بھرپور سفارتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ہے۔ خطے کی صورتحال پر 4 افریقی اجلاس آج ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل سے ایران تنہا نبرد آزما ہے۔ دشمن کے اڈوں اور مفادات پر زوردار حملے کیے۔ پاسداران انقلاب نے تازہ کارروائیوں میں 500 امریکی فوجی ہلاک اور 1 F-16 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ بھی کر دیا ہے۔ سعودی عرب میں امریکی ایئر بیس پر جاسوس طیارہ تباہ کر دیا گیا، جس کی تصدیق بھی کر دی گئی۔ دوسری جانب ایران نے ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے علیحدہ ہونے پر غور شروع کر دیا۔ ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا کہ اب خطے میں امریکی اور اسرائیلی یونیورسٹیوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ سفاکانہ جارحیت سے ایران ڈرا نہیں ڈٹا رہا۔ پاسداران انقلاب نے جارح قوتوں کو زبردست نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا۔ کہا امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں خطے میں امریکی اور اسرائیلی صنعتی اہداف کو ڈرونز اور میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ مزید کہا کہ یہ کارروائیاں محض وارننگ ہیں، اگر ایران کی صنعتی تنصیبات پر حملے جاری رہے تو رد عمل مزید شدید ہوگا۔ خبردار کیا کہ آئندہ حملوں میں اسرائیل اور امریکہ سے منسلک تعلیمی اداروں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صوبہ فارس کے شہر شیراز میں ایرانی دفاعی نظام نے امریکی MQ-9 ڈرون مار گرا۔ جنوبی ایران میں امریکی F-16 کو مار گرانے کا دعویٰ بھی کیا گیا۔ دوسری جانب سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی میزائل حملے میں امریکی سرویلنس طیارہ تباہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔
रिपोर्ट्स के मुताबिक E3 एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम तैयारे की तबाही की तस्वीर भी सामने आई हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इस नौइयत के तैयारे जंगी सूरत हाल में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं और इनकी तबाही से खलीज फारस में निगरानी का निज़ाम मुतासर हो सकता है। कुवैत पर दागे गए ड्रोन्स एयरपोर्ट पर जा गिरे, जिसके नतीजे में शदीद आग भड़क उठी। कुवैती हुक्काम का कहना है वाक़ई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तमाम फ्यूल टैंक में आग लगने और रडार सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचने की इत्तलात हैं। ऐसे में ईरान ने एटमी अदम फैलाव के मुआहदे NPT से अलहदा होने पर गौर शुरू कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट समेत मुतल्लिक़ इदारे NPT से ईरान के दस्तबरदार होने पर गौर कर रहे हैं। ईरानी मीडिया का कहना है वाज़ेह हो चुका है कि ईरान के NPT में रहने का जवाज़ ही नहीं बचा। यमन के हौसियों ने इसराइल पर एक बार फिर हमला किया। मिसाइल हमले में मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली तंसीबात को निशाना बनाया गया। ग्रुप की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हमला लबनान, ईरान, इराक और फ़लस्तीन में शहरियों की अम्बाद बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के रद्द-ए-अमल में किया गया। अहदाफ हासिल करने तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अमरीकी और सेहूनी इत्तेहाद ने ईरान पर हमले जारी रखे। तेहरान और करज जोरदार धमाकों से गूंज उठे। बड़े पैमाने पर जानी माली नुकसान हुआ। 28 फरवरी से जारी जारहियत में शहादतों की तादाद 1900 से तजावुज़ कर गई, जबकि 24,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। अमेरिका और इसराइल ईरान में अंधाधुंध बमबारी करने लगे। वो शहर में किया गया हमला एक ही खानदान के 4 अफराद की जान ले गया, जबकि सूबा खूस्तान में पानी की एक अहम तंसीब को निशाना बनाया गया। तेहरान के मगरिब में वाक़ शहर कर्ज रात भर धमाकों से गूंजता रहा, जिसके बाद पहाड़ी इलाकों से धुआं उठता देखा गया। ऐसे में अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि अमेरिका खार्क समेत ईरान के साहिली इलाकों पर जमीनी कार्रवाई के लिए पर तोल रहा है। महदूद जमीनी कार्रवाई खुसूसी दस्ते और रवायती फौजी करेंगे। अमेरिकी अहदेदार ने कहा कि सदर ट्रम्प जमीनी फौज की तैनाती की मंजूरी देंगे या नहीं, ये अभी वाज़ेह नहीं है। दूसरी जानिब ईरानी हिलाल अहमर ने अमरीकी और सहूनी जहरियत से होने वाले नुकसानात के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। हालिया हमलों में मजमूई तौर पर 93,000 से ज़ायद शहरी अमलाक तबाह हो चुकी हैं। मुतासरा मकानात की तादाद 71,547 बताई गई है, जबकि 20,779 तिजारती अमलाक को भी नुकसान पहुँचा है। सफ्तार हुकूमत तेहरान में 31,562 रहायशी और तिजारती इमारतें मुतासर हुई हैं। अमरीकी फ़ौज पसपाई अख्तियार कर रही है, अपने अड्डों से निकलकर भाग रही है। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान का वीडियो बयान कहा कि ये सब ईरान की ताकतवर जवाबी कार्रवाई का नतीजा है। खत्ते में मौजूद अमरीकी दिफाई निज़ाम नाकाम हो चुका। 400 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी अड्डों से निकलकर दुबई के मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जारहाना अज़ाइम और अमरीकी अवाम ने मुस्तरद कर दिए। ईरान जंग के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में हुजूम उमड़ आया, जिसकी तादाद 70 लाख बताई जाती है। शुरका ने सदर पर शदीद तनकीद की। इन मुजाहिरों में मारूफ शोबिज़ शख्सियात भी शरीक हुए। ईरान जंग ट्रम्प को अमेरिका में इंतहाई गैर मकबूल कर गई। नो किंग्स के नाम से होने वाले मुजाहरे मुल्क भर में फैल गए। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लॉस एंजलिस समेत मुख्तलिफ शहरों में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने ईरान पर हमला ट्रंप की जाती लड़ाई करार दिया। कैलिफोर्निया में साहिल की रेत पर लिख दिया कि सदर ट्रंप को जाना होगा। मारूफ अदाकार रॉबर्ट डिनेरो ने भी नो किंग्स मुजाहिरों की हिमायत कर दी। उन्होंने ट्रंप को अमरीका की बका के लिए खतरा करार दिया। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन ने सदर समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं के पुतले भी उठा रखे थे। नो किंग्स मुजाहिरे अमरीका भर में आज भी जारी रहने का इम्कान है। नेतन्याहू की जारे मिजाजी के खिलाफ इसराइली अवाम भी फट पड़े। तेल अवीव में ईरान जंग के खिलाफ बड़ा मुजाहरा हुआ। मुजाहिरीन ने ईरान के खिलाफ जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया, जिस पर इसराइली पुलिस ने रिवायती बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया है। हैफा में ड्रम बजाते लोगों ने जंग के खिलाफ एहतजाज किया है। ये ईरान जंग के खिलाफ होने वाला सबसे बड़ा मुजाहरा करार दिया जा रहा है। मुजाहिरीन ने कहा कि वो इन ना ख़त्म होने वाली जंगों से बेजार हो चुके हैं। ईरान ने मज़ीद 20 पाकिस्तानी जहाज़ों को अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक्स पर तस्दीक कर दी। लिखा कि अब रोज़ाना 2 पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ अपनाए हुर्मुज़ से गुजरेंगे। इसहाक डार ने ईरान के मस्बत और तामीरी रवैये का खैर मकदम करते हुए कहा कि ईरानी हुकूमत का मस्बत ऐलान अमन की जानिब कदम है। बातचीत, सिफारतकारी और एतमाद साजी पर मबनी इक़दामात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता हैं। ईरानी फ़ौज की सलाहियतों से मुताल्लिक़ गलत अंदाज़ा लगाया गया। सहूनी रियासत ईरान की ताकत से खौफज़दा है।
नेतन्याहू और मोसाद के सरबराह में ठन गई। इसराइली मीडिया अंदर की खबर मंजर आम पर ले आया है। दावा किया गया कि मोसाद चीफ एक हफ्ते से अहम मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे। मोसाद सरबराह पर ईरानी फौज की सलाहियतों से मुतालिक गलत मालूमात देने का इल्ज़ाम है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान जंग की जिम्मेदारी मोसाद सरबराह पर डाल दी है, जबकि मोसाद ने नेतन्याहू को जंग का जिम्मेदार करार दिया। रेंजर और सीटीडी का कराची में मुश्तरका ऑपरेशन। गुलशन इकबाल ब्लॉक 12 मुन्नू कोट से फितनौल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द आसिम बलूच गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान सिंध रेंजर के मुताबिक दहशतगर्द से असलहा, एमुनेशन, धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद काशान से। जी काशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची से बड़ी खबर है। सिंध रेंजर्स और सिक्योरिटी की जानिब से खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मन्नू कोट ब्लॉक 12 गुलशन इकबाल से फितरतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाला इंतहाई मतलूब दहशतगर्द आसिम बलोच को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार के कब्जे से असला, एमुनेशन, धमाके मवाद भी बरामद किया गया है। तर्जुमान रेंजर्स की जानिब से बताया गया कि दहशतगर्द 2023 में फितरतुल हिंदुस्तान PLA के कमांडर तारिक उर्फ सूफी, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारा गया है, उसके कहने पर ये फितरतुल हिंदुस्तान PLA में शामिल हुआ था। जबकि दहशतगर्द ने इंकशाफ किया है कि 2016 में कराची से पानवन जीवानी बलूचिस्तान में ये शिफ्ट भी हुआ था। फितरतुल हिंदुस्तान में शमूलियत के बाद कमांडर तारिक उर्फ सूफी के कहने पर असला, एमुनेशन और राशन की तकसीम की सौदाकारी में भी ये मुलव्विस रहे। जबकि 2025 में तारिक उर्फ सूफी की सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हलाकत के बाद दहशतगर्द ईरान के इलाके रमदान में जो ये रूपोश भी हो गया था। दहशतगर्द इसके साथ ही सलमान बलोच ने अपने कमांडर की हलाकत पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस से बदला लेने का अहद और हलफ भी लिया था। जबकि रेंजर्स की जानिब से तफसीलात में बताया गया कि दहशतगर्द को पड़ोसी ममालिक में फितरतुल हिंदुस्तान के कमांडर रियान बलोच ने अस्करी तरबियत हासिल करने के लिए मजीद ब्रिगेड में भिजवाने का भी आदा किया था। और दहशतगर्द ईद के बाद फितरतुल हिंदुस्तान PLA के कैंप में अस्करी तरबियत हासिल करने के लिए जा रहा था। इसके अलावा गिरफ्तार दहशतगर्द जो है दहशतगर्द तंजीमों के मुख्तलिफ सोशल मीडिया। कराची के इलाके करीबाबाद फेडरल बी एरिया के करीब कंटेनर में आग लग गई। रेस्क्यू के मुताबिक एक फायर टेंडर मौके पर पहुंचा ऑपरेशन शुरू किया, आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी है। कराची के इलाके करीबाबाद में ये वाक़या पेश आया। फेडरल बी एरिया के करीब कंटेनर में आग लग गई। रेस्क्यू के मुताबिक एक फायर टेंडर मौके पर पहुंचा, ऑपरेशन शुरू किया, आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। बनारस पुल के ऊपर पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी हो गया। डाकू एम्बुलेंस के जरिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त 20 साला सैफुल्ला वल्द अहमद जान उमर के नाम से की गई। आपको आगाह करते चले आम खबर से कि बनारस पुल के ऊपर पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी हो गया। डाकू एम्बुलेंस के जरिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शनाख्त 20 साला सैफुल्ला वल्द अहमद जान उमर के नाम से हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।